بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصیر خان اور نور خان چونی کے بازار کی طرف ہو لیے۔ کیپٹن جیمز سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ اسے دیکھتے ہی نور خان کو سانپ سونگھ گیا۔ اسے اور کچھ نہ سوجا تو وہ بھاگ کر پاس کی دکان کی بغل میں رکھے ہوئے سامان کے ڈھیر میں چھپ گیا۔ نصیر خان اسے حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ ادھر ایدو کو کیپٹن جیمز نے پہچان لیا۔ یہی وہ انگریز فوجی افسر تھا جس کی بیٹی کو نور خان نے اٹھوایا تھا اور شہباز خان نے آ کر زر تاوان بھی لوٹا دیا تھا۔ ایدو کو آس بندی کہ اگر کیپٹن جیمز کو کسی طرح حقیقت سے آگاہ کر دیا جائے تو شہباز خان کم از کم سرکاری قید خانے میں آ جائے گا اور پھر نور خان کو یہاں قدم جمانا مشکل ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر ایدو کیپٹن جیمز کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ کیپٹن جیمز اس وقت آفیسر میس میں جا رہا تھا۔ وہ میس کا سیکرٹری تھا اور اکثر سامان چیک کرنے پہنچ جاتا تھا۔ ایدو میس کے پچھواڑے سے داخل ہوا اور باورچی خانے کے پاس سے ایک جھاڑی کے پیچھے بیٹھ گیا۔ آبدار جبر خان پیچھے سے ایک دیس کی صاف کرتے ہوئے آ رہا تھا۔ جھاڑی کے پیچھے سے کڑکڑ سن کر اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے کسی سارس کی طرح گردن لمبی کر کے دیکھا تو ایدو نظر آ گیا۔ ایدو اس وقت میس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حال ہی میں میس سے ایک پتیلا غائب ہو چکا تھا۔ پتیلے کی چوری کا معاملہ باورچی اور آبدار چھپا گئے تھے ورنہ انہیں ذلیل ہونا پڑتا۔ انہوں نے یہی سوچا کہ اپنی جیب سے خرچ کر کے معاملہ دبا دیا جائے تو اچھا ہے۔ پھر جبر خان اس طرح ایدو پر جھپٹا جیسے بلی کبوتر پر جھپٹتی ہے۔ آج پکڑ میں آیا خوچے۔ جبر خان دانت پیس کر بولا، سچ بتا، پتیلا بھی تو ہی چرا کر لے گیا تھا نا؟ ایدو نے گھبرا کر کہا، میری بات تو سنو خانہ، میں آپ سے مدد حاصل کرنے آیا ہوں۔ مدد حاصل کرنے آیا ہے اور باورچی خانے کے پاس برتن تاک رہا ہے۔ جبر خان اپنی ہی دھن میں تھا۔ بتا تو کس قبیلے سے ہے؟ خان، قرآن شریف کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں مدد حاصل کرنے آیا ہوں۔ شہباز خان کی جان خطرے میں ہے اور مجھے اس کا احسان اتارنا ہے۔ یقین کرو میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ ایدو گڑ گڑانے لگا۔ شہباز خان کا نام سنتے ہی جبر خان کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور وہ بولا، تم شہباز خان سرباز کو کیسے جانتے ہو؟ اس کی جان کیسے خطرے میں ہے؟ تمام باتیں تفصیل کے ساتھ سچ سچ بتا دو۔ تو کیا تم شہباز خان سے واقف ہو؟ ایدو نے حیرت سے پوچھا۔ واقف ہوں؟ ارے ہم خود ارغزے قبیلے کا ہے، جبر خان نے بتایا۔ شہباز خان ہمارے سردار کا بیٹا ہے۔ ایدو کی جان میں جان آئی اور اس نے ساری کہانی بیان کر دی۔ یہ سن کر جبر خان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ ایدو، اس نے جواب دیا، میں محمد ہوں۔ تم ہمارا دوست ہے، عزیز ہے، جبر خان بولا۔ اس سالے مخبر نصیر خان کو ایک بار مجھے دکھلا دو۔ خان، میری رائے تو یہ ہے کہ تم کسی طرح شہباز خان کے گھر میں جا کر یہ خبر پہنچا دو۔ ایدو نے مشورہ دیا، شہباز خان کے لیے زر فدیہ مانگا جائے گا۔ فدیہ ادا کرتے وقت ہی نصیر خان یا نور خان کو قابو میں کیا جائے گا۔ یہ بھی ضروری ہے کہ یوسف زئی قبیلے میں جا کر سردار گلاب خان کے بیٹے گلفان کو آگاہ کر دیا جائے کہ وہ اپنی بہن کو لے کر یہاں ہرگز نہ آئے۔ جبر خان یہ سب کچھ سنتا رہا، پھر بولا، میں پہلے شہباز خان کے گھر جاؤں گا، اس کے بعد یوسف زئی قبیلے کا رخ کروں گا۔ تم چاہو خان، تمہیں اپنے کوارٹر میں تمہارے رہنے کا انتظام کر دوں۔ شہباز خان کا ذکر تم یہاں کسی سے نہ کرنا ورنہ بات کھل جائے گی اور انگریز افسروں تک پہنچ گئی تو تم بھی ڈر لیے جاؤ گے۔ جبر خان، یہ جو کیپٹن ابھی اندر گھسا ہے یہ وہی ہے جس کی بیٹی کو نور خان نے اٹھوایا تھا، ایدو نے بتایا۔ جبر خان سوچ میں پڑ گیا، پھر کہنے لگا، ہاں یہ کام ہو سکتا ہے، نور خان کو پکڑوایا جا سکتا ہے۔ میں کیپٹن جیمز کو خبر کر دوں گا، مگر یہ کام بات کا ہے۔ پہلے تو مجھے شہباز خان کے یہاں جانا ہوگا اور پھر یوسف زئی قبیلے میں۔ ایدو نے اطمینان کا سانس لیا۔ اسے ایک مددگار مل گیا تھا۔ اس نے سوچا، اب میں شہباز خان کو تلاش کرنے کے لیے نصیر خان اور نور خان کے پیچھے لگ جاؤں گا، تب تک یہ خبر شہباز خان کے قبیلے تک بھی پہنچ جائے گی۔ ایدو نے جبر خان کی تجویز قبول کر لی۔ وہ جبر خان کے کوارٹر میں ٹھہر گیا اور وہیں رہ کر نور خان اور نصیر خان کے تعاقب کا فیصلہ کیا۔ دوسری طرف نور خان کو مہاجبین کی بڑی فکر تھی۔ مہاجبین کے حصول کی خاطر وہ بے چین ہوا جا رہا تھا۔
नसीर खान से कहकर उसने जगाखेल से एक मुखबर को महजबीन के भाई के पास भेजना चाहा। नसीर खान बोला, मेरा ख्याल है हमें शहबाज खान से उसके बाप को ज़र फिदिया के लिए ख़त लिखवाना चाहिए, फिर उसी ख़त में तब्दीली करके उसे महजबीन के नाम कर देना चाहिए। ख़त को देकर वो छोकरी ज़रूर जाल में आ फंसेगी अगर उसे शहबाज खान से सच्ची मोहब्बत हुई। ये सुनकर नूर खान का दिल खुशी से बिल्लियों उछलने लगा। वो नसीर खान के दोनों हाथ अपनी पेशानी से लगाकर कहने लगा, मान गए तुम्हें नसीर खाना, तुम्हारी खोपड़ी में वाकई बड़ी अकल भरी हुई है, तुम तो कमाल के आदमी निकले। उस वक्त कागज़ और कलम का इंतज़ाम करके वो दोनों चल पड़े। ईदू उनके पीछे दबे कदमों चल रहा था। काफ़ी दूर चलने के बाद एक सुनसान पगडंडी पकड़े वो शुमाल की तरफ चल दिए। थोड़ी देर में एक नीम शिकस्ता मस्जिद नजर आई। मस्जिद के सामने वाला हिस्सा गिर चुका था और पीछे का हिस्सा अब भी नमाज के लिए वक़फ था। मस्जिद के अक़ब में ऐसा ही एक बोसीदा मकान था जिसके दरवाजे पर बोरिये का पर्दा पड़ा हुआ था। मस्जिद ही के अक़ब में झोंपड़ियाँ भी थी। उनमें से एक झोंपड़ी में चाय खाना था। बगल वाली झोंपड़ी में एक और छोटी सी दुकान थी। दुकान से तकरीबन 100 गज की दूरी पर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में ज़्यादा झोंपड़ियाँ नहीं थी। जहां चाय की दुकान का होना ये साबित करता था कि इस रास्ते से कुछ खास लोग ज़रूर गुजरते थे, वरना गांव के बाशिंदे चाय पीने का शौक किस तरह पूरा कर सकते थे। बात ठीक ही थी। मालाकंड की तरफ से कुछ लोग चोरी का माल चुप छुपा कर लाते थे और चाय की इसी दुकान पर चोरी के सामान को बेचने का बंदोबस्त होता था। चोरी की अशिया में पिस्तौल और बंदूकों को खास माल समझा जाता था। नसीर खान और नूर खान उसी चाय खाने में जा पहुंचे। अलैक सलह के बाद नसीर खान ने चाय खाने के मालिक जाफर को मुस्कुराकर मुखातब किया, सब ठीक ठाक है न जाफर? आपकी तरबियत है सब, जाफर भी मुस्कुरा कर बोला। चाय खाने के मुलाजिम ने मिट्टी के 2 कूजों में उन दोनों के सामने चाय लाकर रख दी। दोनों चाय पीने लगे। और सुनाओ जाफर, धंधा कैसा चल रहा है? नसीर खान ने दरियाफ्त किया। लहजे में मानी खेजी थी। क्या बताएं हुजूर, मालाकंड की छावनी में बड़ी चौकसी होने लगी है। जाफर ने बताया, अब तो खास माल आता ही नहीं, एक मुद्दत हो गई। पिछली बार मैस का एक बेरा चांदी के 2 कांटे उठा लाया था। घबराओ मत जाफर खाना, नसीर खान ने कहा, थोड़ी ही दिनों में हम तुम्हें माला माल कर देंगे। हमारा एक साथी मंसूर खान आने वाला है, उसने एक राइफल पर हाथ साफ किया है। जैसे ही वो आएगा हम उसे तुम्हारे पास लाएंगे, मगर अब की बार पैसे ठीक मिलने चाहिए। आप बेफिक्र रहें हुजूर, जाफर बोला। उसकी आंखों और चेहरे से लालच का इजहार हो रहा था। वो लालची आदमी था। उसने नसीर खान को यकीन दिलाया, अजी पीर आबाद का एक खान राइफल के 2000 रुपए देने को तैयार है। कई दफ़ा कह चुका है कि एक विलायती राइफल दिलवा दो। हुजूर, इंशाल्लाह खूब अच्छे पैसे मिलेंगे। आप अपने साथी को जल्द से जल्द लेकर आएं। ईदू तवज्जो से ये बातें सुनता रहा। और हाँ वो जाफर खान, ये तो बताओ तुम्हारा मेहमान कैसा है? नसीर खान ने पूछा। जाफर अपने पीले पीले दांतों की नुमाइश करते हुए बोला, ठीक है हुजूर, उसकी निगरानी पर कड़े बंदे लगा रखे हैं मैंने, जो उसकी तरफ से हर लम्हा चौकन्ना रहते हैं। वो तो बस पड़ा रहता है और सोचता रहता है। मैं रोज़ उसकी चाय में पोस्ट मिला देता हूँ। जाफर ने अपनी कारकर्दगी जाहिर कर दी। ईदू समझ गया कि शहबाज खान को यहीं रखा गया है। इसके बाद नसीर खान और नूर खान टाट के पर्दे के पास गए और दरवाज़ा खटखटाया। 2 लंबे तड़ंगे आदमी बाहर आए। नसीर खान ने उन्हें सलाम किया और आगे बढ़ गया। कुछ ही देर बाद वो दोनों वापस आ गए। उनके चेहरों से खुशी का इजहार हो रहा था। यकीनन वो हिफाजती इक़दामात से मुतमईन थे। नसीर खान के हाथ में ईदू को एक कागज़ भी नजर आया, मगर वो समझ न पाया कि उस कागज़ की अहमियत क्या है। बहरहाल उसने शहबाज खान का सुराग लगा ही लिया था। नूर खान ने नसीर खान से वो कागज़ लेकर गौर से देखा। ये एक ख़त था जो शहबाज से लिखवाया गया था। नूर खान ने अब्बा की जगह महजबीन लिखवाया और मज़ीद कुछ तब्दीलियाँ करवाकर वो ख़त उसी रोज़ ज़काखेल के मुखबर को थमा दिया। वो मुखबर ख़त लेकर फ़ौरन ही रवाना हो गया। उस मुखबर ने यूसुफज़ई कबीले में पहुंचकर गुलफाम का पता मालूम किया। फिर बोला, मुझे इसी वक्त सरदार ज़ादे से मिलना है।
जिस शख्स से मखबर ने पता पूछा था उसने उसे फौरी तौर पर गुलफाम के पास पहुंचा दिया। सरदार ज़ादे, मखबर ने गुलफाम से कहा, आपसे मुझे एक बहुत ज़रूरी बात करना है। मैं शहबाज खान का दोस्त हूँ और वो आजकल बड़ी मुश्किल में है। शहबाज का नाम सुनकर गुलफाम चौंक उठा, फिर बेसब्री से बोला, कहाँ है शहबाज खान? मखबर ने जवाब दिया, हुजूर, उसे जक्का खेल के कुछ लुटेरों ने अपने पास कैद कर रखा है और उनका मंशा ज़रे फिदिया कमाने का है। एक मर्तबा शहबाज खान ने मेरी मदद की थी, मुझे उसका वो एहसान उतारना है। शहबाज को पहचान कर ही मैंने उसका पीछा किया और फिर मौका मिलने पर मैं उसे ये ख़त लेकर आ गया। उसने मुझे आपके पास भेजा है और ये ख़त बीबी महजबीन के नाम लिख कर दिया है। उसने कहा था कि जितनी जल्दी मुमकिन हो मैं ये ख़त और उसका ज़ुबानी पैगाम आप तक पहुंचा दूं। ये सुनते ही गुलफाम ने फ़ौरन वो ख़त ले लिया और एक ही नज़र में पढ़ डाला। मुखबर उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखता रहा, फिर कहा, शहबाज खान ने मुझे एक बात की हिदायत और की थी ए सरदार ज़ादे। वो हिदायत ये थी कि इस मामले में ज़ोर ज़बरदस्ती न की जाए, इस तरह शहबाज खान की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ सकती है। बेहतर यही है कि फ़िलहाल आप 1000 रुपये की रकम लेकर बीबी महजबीन और कुछ वफादार लोगों के साथ निकल चलें। मखबर ने महसूस कर लिया कि शहबाज खान का ख़त पढ़कर गुलफाम उसके फरेब में आ चुका है और ऐसा ही था भी। गुलफाम ने फ़ौरन महजबीन से जाकर मशवरा किया और उस मखबर को अपने एक साथी के यहाँ ठहरा दिया। दूसरे दिन वो अपने बाप से शहर घूमने जाने का बहाना करके अपने 5 साथियों और महजबीन को लेकर चल पड़ा। मखबर उन सब की रहनुमाई कर रहा था। आखिर वो सफ़र करते हुए मंजिल पर पहुँच ही गए। उन्हें मखबर ने एक सराय में ठहरा दिया और ख़ुद नसीर खान के पास जा पहुँचा। नसीर खान उसकी कारकर्दगी से बहुत खुश हुआ, मगर गड़बड़ ये हो गई कि नूर खान अपने कबीले में गया हुआ था। वो अपने बाप से किसी बहाने से रकम हथियाने गया था। उसे महजबीन को अपने कब्जे में लाकर कुछ दिन ऐशो आराम से गुजारना थे और इसके लिए रकम बहुत ज़रूरी थी। नसीर खान से कह गया था कि बस आना जाना है। नूर खान जब अपने कबीले में पहुंचा तो गुलसुमन को उसकी आमद के बारे में मालूम हो गया। उधर ईदू का कुछ पता न था। गुलसुमन की मदद करने वाला फिलहाल ईदू का छोटा भाई करीम खान ही था। वो फौरन करीम के पास पहुंची और सलाह मशवरा करने लगी। वहां उसने देखा कि ईदू भी थका मांदा पड़ा था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र ईदू भाई कि तुम मिल गए। गुलसुमन ने सुकून का सांस लिया। ईदू ने सारा माजरा कह सुनाया। मैं नूर खान का ताक़ुब करता हुआ यहाँ आया हूँ गुलसुमन। इसके अलावा मुझे अपनी राइफल भी शायद यहाँ से ले जाना थी। उसी राइफल के लालच में शायद जाफर मुझे शहबाज खान तक पहुँचा दे। इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। मुझे कल सुबह महजबीन के भाई से भी मिलने जाना है ताकि वो कहीं नूर खान की साजिश का शिकार न हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है। गुलसुमन ने ईदू की हिम्मत बंधाई। क्यों नहीं ईदू भाई, हमें यकीनन नूर खान की साजिश का तोड़ करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ हमें अभी चल देना चाहिए। यूसुफज़ई कबीला आखिर यहाँ से दूर ही कितना है। वो बड़ी पुरजोश लग रही थी। हर चंद की ईदू बहुत थका हुआ था, मगर गुलसुमन को इस मामले में पुरजोश देकर चलने पर तैयार हो गया। ईदू और गुलसुमन उसी वक्त रवाना हो गए। जाने से पहले ईदू अपने एक दोस्त रफ़ीक को नूर खान की नक्ल हरकत पर नज़र रखने के लिए कह गया था। जब ईदू यूसुफज़ई कबीले पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि चंद ही घंटे पहले गुलफाम, महजबीन और उनके 5 साथी पेशावर की तरफ जा चुके हैं। ईदू के पांव तले से ज़मीन खिसक गई। गुलसुमन भी परेशान हो गई। उन्हें अगर इत्मीनान था तो सिर्फ ये कि नूर खान अभी कबीले में था। गुलसुमन ने उसी वक्त ये फैसला कर लिया कि वो भी ईदू के साथ पेशावर जाएगी और नूर खान की साजिश को नाकाम बनाने की कोशिश करेगी। वो जानती थी कि नूर खान महजबीन को अपनी हवस का निशाना बनाना चाहता है। उसकी आंखों में नमी तैर रही थी। दुख के साथ साथ उसे सख्त गुस्सा भी आ रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका मंगेतर नूर खान यहाँ तक भी गिर सकता है। नूर खान शायद शहर में फलों की दुकान करने का फरेब देकर बाप से रकम ऐंठने ही आया था। उसने सोचा और उसका अंदाज़ा कतई दुरुस्त था। नूर खान अपने बाप से रुपए लेकर अगले ही दिन चल दिया था। उससे थोड़े फासले पर गुलसुमन और ईदू भी आ रहे थे।
जबर खान शहबाज के कबीले से वापस पेशावर आ चुका था। कबीले में हर तरफ उदासी छाई हुई थी। इसके बावजूद कबीले वालों ने बात को दबा के रखा था। सरदार तुर्रे खान ज़रे फिदिया देने पर तैयार था। उसे बस एक ही फिक्र थी कि कहीं शहबाज खान अंग्रेज़ों के हाथे न चढ़ जाए। उसके नज़दीक ऐसा होना बहुत ख़तरनाक था। फिर शायद वो अपने बेटे को अंग्रेज़ों से न छुड़ा पाता और उसे हुकूमत वक्त से बगावत के इल्ज़ाम में सज़ाए मौत हो जाती। उसने कबीले के बहुत ही दलेल किस्म के 4 आदमी जबर खान के साथ कर दिए। जबर खान खुद ईदू का मुंतज़र था कि आखिर वो गया तो कहाँ गया कि ईदू अपने साथ गुलसुमन को लेकर पहुँच गया। उन दोनों को देखकर जबर खान खामोश हो गया। सबसे पहला काम तो शहबाज खान को रिहाई दिलाना था और इसी के साथ साथ महजबीन को नूर खान के जाल में फंसने से बचाना था। दूसरे ही दिन ईदू शहबाज के 2 साथियों को लेकर पुरानी मस्जिद के अक़ब में पहुंच गया, जहां जाफर का चाय खाना था। जाफर उस वक़्त चाय की केतली आग पर रख रहा था। ईदू ने बैठते ही चाय मंगवाई। उसके साथी कुछ सी फासले पर छुपे थे। फिर उसने जाफर खान से राइफल की बात छेड़ दी और कहने लगा, मेरा नाम मंसूर खान है, मैं नसीर खान का दोस्त हूँ। ये सुनते ही जाफर की आंखों में चमक आ गई और वो अपनापन दिखाने लगा। बातचीत के दौरान में ईदू ने बताया कि ये राइफल मैंने एक कबीले के लुटेरे से खरीदी थी जो इन दिनों मफरूर है। ये लुटेरा यूं समझो कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, क्योंकि उसे पकड़वाकर बड़े मज़े से 2000 रुपये का सरकारी इनाम और ज़मीन मिल सकती है। जाफर के कान खड़े हो गए। वो सोचने लगा कि जो आदमी नसीर खान ने यहाँ कैद कराया हुआ है वही तो कहीं मफरूर लुटेरा तो नहीं। उसने दाढ़ी कुचाती हुई ईदू से कहा, खान तुम उस लुटेरे को पहचान लोगे क्यों नहीं? ईदू ने जवाब दिया, समझ गया मैं, तुम सरकारी इनाम हासिल करना चाहते हो। सुनो, जाफर की आवाज़ धीमी और राजदाराना हो गई, हमने एक आदमी को पकड़ रखा है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे देख लो कि वही तो मफरूर, खुदा करे ये वही आदमी हो। ईदू बात काटकर पुरजोश आवाज़ में बोला, मगर तुम 500 रुपये इनाम की रकम में से मुझे दोगे। जाफर खान अव्वल दर्जे का लालची और फरेबी था। वो इधर उधर देखकर कहने लगा, मेरे साथ आओ। ईदू फौरन उठ खड़ा हुआ। जाफर ने टाट का पर्दा उठाकर 3 बार दस्तक दी। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? जाफर ने आहिस्ता से कहा, दरवाज़ा खोलो फिरोज़, मैं जाफर खान हूँ। दरवाज़ा खुल गया। अंदर 2 कवि हैकल आदमी बैठे ताश खेल रहे थे। वो ईदू को सवालिया नज़रों से देखकर जाफर की तरफ मुतवज्जि हुए। एक शख्स ने जाफर से आखिर पूछ लिया, जाफर खान ये कौन है? इसे पहले कभी नहीं देखा। जाफर ने फौरन बात बना दी, ये हमारा नया नौकर जमन खान है। तस्दीक से ईदू ने गर्दन हिला दी। उन दोनों ने ईदू को बगौर देखा और फिर जाने दिया। सीढ़ियाँ चढ़कर अंदर कमरे में पहुंचे। ईदू ने देखा कि फर्श पर शहबाज खान बेसुध पड़ा बेखबर सो रहा था। जाफर खान ने उस कमरे के दरवाजे पर पड़ा हुआ ताला खोला था और ईदू को अंदर बुला लिया था। हाँ, अब इसे देखकर बताओ, क्या ये वही मफरूर लुटेरा है जिस पर सरकारी इनाम मुकर्रर है? जाफर ने बहुत ही धीमी आवाज़ में ईदू से सवाल किया। ईदू ने शहबाज खान सरबाज पर नज़र डाली और जवाब दिया, ये वो नहीं है, वो तो बड़े ढील ढोल वाला था और चेहरे पर दाढ़ी भी थी। जाफर मायूस होकर ईदू को साथ लिए वहाँ से कमरा मकफल करके लौट आया। अब वो ईदू से राइफल खरीदने के लिए सौदेबाजी कर रहा था। ईदू ने फिलहाल उसे टाल दिया। उसे जो मालूम करना था वो मालूम हो चुका था। उसने अंदर का राज ले लिया था। शहबाज खान को खुद अपनी आंखों से देखकर उसे इत्मीनान हो गया था। वो ये भी समझ गया था कि शहबाज खान की बेसुध पड़े रहने की वजह वो चाय थी जो उसे रोज पाबंदी से पिलाई जा रही थी। चाय में उसे अफयूम दी जा रही थी। इसके बाद वहाँ रुकना ही फजूल था। ईदू फिर जल्द आने का वादा करके उठ खड़ा हुआ और अपने जहन में महल्ली वक़ू को सामने रखकर शहबाज खान की रिहाई के मंसूबे बनाने लगा। नूर खान के मुतालिक ईदू खान को जबर खान के पास वापस पहुँचते ही ये इत्तला मिल गई कि उसका आदमी अभी अभी बता कर गया है, नूर खान अपने कबीले से वापस पेशावर पहुंच गया है। ईदू खासा थका हुआ था, मगर नूर खान पर भी नजर रखना जरूरी था। सो वो गुलसुमन और शहबाज के कबीले के एक आदमी को साथ लेकर चल पड़ा। उसने गुलसुमन और शमसू को नूर खान की निगरानी के लिए छोड़ दिया।
وہ دونوں درزی کی دکان کے پاس سے نور خان پر نظر رکھنے لگے۔ شمسو کسی ضرورت سے گیا ہوا تھا، وہ اس طرح چادر اوڑی ہوئی تھی کہ اس کا چہرہ نظر نہ آ سکے۔ نور خان کے تعاقب میں وہ سرائے پہنچی۔ نور خان اس آدمی کو آگے کر کے الگ کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد گلسمن نے دیکھا کہ گلفام اور مہاجبین اسی آدمی سے باتیں کر رہے ہیں۔ گلسمن ان دونوں کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ کچھ دیر گفتگو کے بعد گلفام اور مہاجبین اس آدمی کے ساتھ ہو لیے۔ گلسمن ہمت کر کے ان کا تعاقب کرتی رہی۔ اس کے پاس ایک خنجر کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کچھ دور چل کر وہ آدمی گلفام اور مہاجبین کو ساتھ لے کر ایک مکان میں داخل ہو گیا۔ اس نے اندر گھستے ہی دروازہ بند کر لیا۔ گلسمن چکرا گئی، مگر فوراً ہی اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے اپنے بڑے سے رومال میں کنکر بھرے اور پھر اس مکان کے دروازے پر دستک دینے لگی۔ ایک بھڑیا نے دروازہ کھولا۔ اسے دیکھتی ہی گلسمن بول اٹھی، میں بیگم کی خادمہ ہوں، جو ابھی ابھی اندر گئی ہے نا، انہی بیگم کی خادمہ۔ جلدی میں وہ زیورات کی تھیلی بھول آئی ہے، یہ انہیں دینا ہے۔ یہ کہہ کر گلسمن جواب طلب نظروں سے بھڑیا کو دیکھنے لگی۔ زیورات کا سن کر بھڑیا کی بجھی بجھی سی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے گلسمن کو اندر آنے دیا۔ اندر گھستے ہی گلسمن نے کنکروں کی پوٹلی اتنے زور سے بھڑیا کے سر پر دے ماری کہ وہ چیخے بغیر کسی کٹے ہوئے پیڑ کی طرح گر پڑی۔ پھر گلسمن نے اندر جا کر دیکھا تو گلفام اپنی بہن مہاجبین کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھا تھا اور نصیر خان کا مخبر ان سے باتیں کر رہا تھا۔ کوئی 10 منٹ بعد دروازے پر دستک ہوئی تو نصیر خان اور نور خان اندر آ گئے۔ گلسمن نے ہاتھ سے سلام کیا اور اندر کمرے کی طرف اشارہ کر دیا۔ نصیر خان باتیں کرتا ہوا آگے بڑھنے لگا اور پھر کمرے کے پاس آ کر اس نے سرگوشی کی، نور خان تم یہیں رہنا، سمجھ گئے؟ نور خان نے اقرار میں سر ہلایا اور باہر کھڑا رہا۔ نصیر خان اندر پہنچا اور فوراً ہی روپیوں کا مطالبہ کیا۔ گلفام نے کہا، پہلے شہباز خان سے ہمیں ملوا کر اسے ہمارے حوالے کر دیا جائے، تب ہم آپ کے روپے دیں گے۔ نصیر خان بولا، ہم رقم سنبھالیں اور تم شہباز خان کو آؤ پہلے اس سے مل لو۔ مخبر، گلفام اور مہاجبین تینوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان تینوں کو نصیر خان نے آگے کر دیا۔ پھر جیسے ہی گلفام باہر نکلا، باہر کھڑے ہوئے نور خان نے پوری قوت سے اس کے سر پر ڈنڈا مارا۔ گلفام آہ کر کے گر پڑا۔ مہاجبین گھبرا گئی۔ اسی وقت نور خان اور مخبر نے گلفام کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے ایک کونے میں ڈال دیا اور تھیلی لے کر جانے لگے جس میں روپے تھے۔ یہ تھیلی انہوں نے بے ہوش گلفام کی جیب سے نکالی تھی۔ چلتے وقت نصیر خان نے نور خان سے کہا، تم رات بھر عیش کر لو، کل صبح ہم اسے لینے آئیں گے۔ نور خان جوش میں تھا اور خوش بھی۔ عرصہ دراز کے بعد آج اس کی ناپاک ورنہ آسودہ خواہشوں کی تکمیل کا وقت آ گیا تھا۔ کانپتی ہوئی مہاجبین کو اس نے کمرے میں دھکیلا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ مخبر اور نصیر خان ابھی وہیں موجود تھے۔ نصیر خان نے نور خان کو بتایا، یہ برقع والی بھڑیا اپنی ہی ہے، یہاں مزے سے وقت گزارو، اس کے بھائی کو دوسرے کمرے میں بند کراؤ، اسے بھی کل یہاں سے ہٹا دیا جائے گا۔ اتنا کہہ کر نصیر خان گلفام کو نور خان کے حوالے کر کے آگے بڑھ گیا۔ نور خان نے بے ہوش گلفام کو اٹھا لیا اور دوسرے کمرے کی طرف چل دیا۔ مخبر کے ساتھ نصیر خان دروازے کے قریب آ کر بولا، آج رات بھر اس لڑکی سے نور خان کو عیش کرنے دیتے ہیں، اچھا ہے کہ پہلے اس کے ارمان نکل جائیں، پھر میری اور تمہاری باری آئے گی اور پھر اس کے بعد۔ نصیر خان اپنی بات ادھوری چھوڑ کر آہستہ سے ہنسا، اس کے بعد ہم اس لڑکے کو طوائفوں کے محلے میں لے جا کر مزے سے کم از کم 2000 روپے میں بیچ دیں گے۔ گلسمن یہ سن کر لرز گئی۔ نصیر خان نے اسے مخاطب کیا، ہوشیار رہنا بڑی بھی، کسی بھی صورت میں لڑکی کو یہاں سے فرار نہ ہونے دینا۔ گلسمن نے کچھ کہے بغیر اقرار میں سر ہلایا۔ نصیر خان اپنے مخبر کے ساتھ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اسی عرصے میں نور خان گلفام کو دوسرے کمرے میں ڈال کر سہمی ہوئی مہاجبین کے پاس آ گیا۔ اس نے مہاجبین سے کہا، آج ہماری شب وصل ہے جانے من، میں ذرا باہر جا کر 2-4 جام چڑھا آؤں، اس سے وصل کا مزہ دگنا ہو جائے گا، پھر تم مجھے اور بھی حسین معلوم ہوگی۔ اس نے پاس آ کر مہاجبین کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ مہاجبین اس کی آغور سے نکلنے کے لیے مچلنے لگی اور پھر اس نے نور خان کی ایک انگلی پر کاٹ لیا۔ نور خان بلبلا اٹھا اور غصے میں آ کر مہاجبین کے پھول سے رخسار پر تماچا رسید کر دیا۔ مہاجبین چیخ اٹھی۔ نور خان بولا،
यहाँ तुम्हारी चीखें सुनकर वो खंजीर का बच्चा शहबाज खान नहीं आ सकता। अब इंतजार करना जाने मन, हम शराब पीकर मस्ती में डूबे हुए अभी आते हैं, फिर सुहाग रात मनाएंगे। फिर नूर खान कमरे से निकल गया और दरवाजा बाहर से बंद करके कुंडी लगा दी। इसके बाद जेब से ताला निकाल कर डाल दिया। चाबी को उसने दरवाजे पर मौजूद कगर पर रखकर महजबीन से कहा, चाबी मैं यहीं रख के जा रहा हूँ, ताकि तुम ये ख्याल करके तड़पती रहो कि चाबी यहाँ मौजूद होने के बावजूद तुम्हें आज़ाद कराने वाला कोई नहीं। वैसे तुम्हारा हाथ चाबी तक नहीं पहुँच सकेगा। पिछली बार जब हम नशा करके लौटे थे तो चाबी गुम हो गई थी। चाबी यहाँ छोड़ने की एक वजह ये भी है, अगर चाबी खो जाए तो मजा किरकिरा ना हो, आज तो लौट के ही चाबी चाहिए ना। ये कहकर वो बेहयाई से हंस दिया। जाते वक्त वो दरवाजे के पास रुककर गुलसमन से मुखातब हुआ, ख्याल रखना बड़ी भी, कल सुबह तुझे हम इनाम देंगे। गुलसमन ने शुक्रिया के तौर पर हाथ के इशारे से सलाम किया। नूर खान के जाते ही गुलसमन उस कमरे की तरफ दौड़ी जहाँ महजबीन बंद थी। महजबीन को उसने दरवाजे के करीब मौजूद खिड़की से देखा जिसमें सलाखें लगी हुई थी। महजबीन घुटनों में सर दिए रो रही थी। बुरका में बाहर खड़ी हुई गुलसुमन ने ताला लगा देकर महजबीन को मुखातब किया, सुनो घबराओ मत। महजबीन ने चौंक कर सर उठाया। उसे वो निस्वानी आवाज आशना सी मालूम हुई थी। उसने गुलसुमन की तरफ देखकर कहा, मेरी मदद करो, वो कमीना मुझे बेआबरू करना चाहता है। ताले की चाबी दरवाजे के ऊपर ताक में है। गुलसुमन ने फौरन चाबी लेकर ताला खोल दिया और फिर दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। महजबीन हैरत से उसे देख रही थी कि मजीद हैरानी उस वक़्त हुई जब गुलसुमन ने बुरका उतार दिया। तुम? महजबीन हकलाई। हाँ महजबीन बहन, मैं, गुलसुमन ने जवाब दिया। ये शब वसल नूर खान तुम्हारे साथ नहीं मेरे साथ ही मनाएगा। जल्दी करो, अपने कपड़े उतार कर मुझे दे दो और मेरे कपड़े तुम पहन लो। तुम्हारा भाई बगल वाले कमरे में पड़ा है, उसे संभाल कर तुम फौरन यहाँ से भाग जाओ और मुझे यहीं छोड़ जाओ। मैं देखूंगी मुझे महजबीन समझकर नूर खान मेरा क्या हाल करता है। महजबीन की आंखों में आंसू भर आए और वो बर्राई हुई आवाज में बोली, मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला कैसे उतारूंगी गुलसुमन बहन। जल्दी करो महजबीन बहन, नूर खान थोड़ी देर में वापस आ जाएगा, वो शराब पीने गया है। और हाँ, तुम जो एहसान उतारने की बात कर रही हो, इस एहसान का बदला भी मैं तुमसे इसी वक्त मांगे लेती हूँ। वो क्या? महजबीन ने आंसू पोंछते हुए सवाल किया। कल सुबह यहाँ कुछ आदमी जरूर भेज देना, गुलसुमन बोली। मेरे एहसान का यही बदला काफी होगा। मैं जरूर 4-5 आदमी यहाँ भिजवा दूंगी, मगर तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? तुम भी यहाँ से हमारे साथ ही निकल चलो ना। महजबीन ने कहा, नहीं, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। नूर खान को शायद ये नहीं मालूम कि नसीर खान कल सुबह उससे मुझे छीन लेगा। फिर नसीर खान और उसका मुखबर मुझसे ऐश करने के बाद मुझे तवाइफों के हाथ बेच देंगे। महजबीन के जिस्म में ये सुनकर कपकपी सी दौड़ गई। वो कहने लगी, मुझे ये मालूम नहीं था। ये तो नूर खान को भी मालूम नहीं, गुलसुमन ने बताया। मेरा कहना मानो तो तुम भी मेरे साथ निकल चलो। महजबीन ने फिर इसरार किया। गुलसुमन ने फिर इनकार कर दिया। मैं नूर खान की हवस और वहशत देखना चाहती हूँ, आखिर मैं उसकी मंगेतर भी तो हूँ ना। जहाँ तक हो सकेगा मैं किसी को भी नूर खान के बनने न दूंगी, मुझे चाहे इसके लिए कितनी ही बड़ी कुर्बानी क्यों न देना पड़े। तुम्हारी मोहब्बत एक हक है बहन, जिसे हर आबरूमंद औरत सीना अपना फर्ज समझेगी बहन। यकीन करो, सुबह इंशाल्लाह तुम बाइज्जत व बाआबरू ही यहाँ से निकलोगी। कोई भी ताकत तुम्हें किसी और रास्ते पर नहीं डाल सकती, महजबीन ने कहा। महजबीन ने गुलसुमन के कपड़े पहन लिए और फिर बराबर वाले कमरे में जाकर अपने भाई गुलफाम को होश में लाने के लिए उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। कुछ ही देर में गुलफाम कराने लगा। वो होश में आ रहा था। महजबीन उसे सहारा देकर उठाने लगी। गुलफाम को सहारा दिए महजबीन कमरे से निकली और सामने खड़ी हुई गुलसुमन से मुखातिब हुई, शबे वसल मुबारक हो गुलसुमन बहन। जवाब में गुलसुमन की आंखों से आंसू ढलकर खूबसूरत रुखसारों पर बहने लगे।